नमस्ते, आप सबका स्ट्रेस मीट में स्वागत है। स्ट्रेस के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, प्रोफेशनल्स से लेके स्टूडेंट्स से लेके हाउसवाइफ्स तक। आजकल स्ट्रेस सबको हो रहा है, तो स्ट्रेस के बारे में शुरू करते हैं। स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है? डॉक्टर आरती? Yeah, I would like to answer this question. Stress is basically, this is the physiological response to any change. Change is कोई भी external factors हो सकता है, like any problem in your surroundings, and it could be internal. You are not medically well, so any change in the surroundings or any change in yourself, if you're not able to cope up with that, it can create some physiological reactions in our body. But we need to understand that stress can be positive and stress can be negative also. But in the negative case, how our body reacts to the stress. In these situations, what happens? In the initial phase, our serum cortisol increases. That's the alarm reaction. That's the initial reaction. And in this reaction, what will happen? Our heart rate will increase, breathing get faster. Sorry, Dr. Aarti, can you unmute yourself? Sorry, sir. Yeah. Okay. In stressful stressful situations, our body reacts to this. What happens in the initial phase is that our serum cortisol increases in the alarm reaction, the Saley's model. In alarm reaction, serum cortisol increases, and what happens in that? Heart rate increases, breathing gets faster, there is sweating, and what happens? Our liver start making more glucose for the energy because we need more in that situation. So this is the alarm reaction. So initially the cortisol level increases, but after some time, if the stress goes away, chala gaya stress, there is recovery phase. Recovery phase is we feel tired. This is something natural. But अगर वो स्ट्रेस नहीं जाता, चला गया, कुछ हद तक चला गया, पर फिर भी कुछ ना कुछ सिचुएशंस चल रही है, वहां एक रेजिस्टेंस फेज हमारी लाइफ में शुरू हो जाता है. अब ये रेजिस्टेंस फेज का मतलब है फाइट और फ्लाइट, बॉडी फाइट कर रही है उस सिचुएशन से निकलने के लिए. एंड ये फेज हम सब फेस करते हैं, बिकॉज स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. किसी की सिस्टम में ज्यादा आया, किसी के सिस्टम में कम आया. अब ये रेजिस्टेंस फेज किसी की लाइफ में 3 से 4 साल भी हो सकता है, या उसका अपना सिस्टम वीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ज्यादा है. और किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है कि वो जो फेज है 15 से 20 साल का. नाउ स्ट्रेस अगर फिर भी नहीं रुकता, और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस या इंटरनल स्ट्रेसेस, या उस इंडिविजुअल में कैपेसिटी नहीं है मैनेज करने की उस स्ट्रेस को, देन व्हाट विल हैपन हियर? कॉर्टिसोल डिप्लीट हो जाएगा. दैट इज कॉर्टिसोल, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन. अगर ये डिप्लीट हो जाता है, this is how chronic stress is related to the physical situation. Stress hormone chala gaya, stress hormone agar chala gaya, immune system gaya. At the same time, stress cortisol is related with the other hormones like insulin, thyroid, sex hormones. So other hormonal imbalance will start. So stress is related with the chronic. The patients may have hormonal issues, patients may have immunological problems, patient may have other issues. So stress, definitely in the initial stages, it presents in a different way. In resistance phase, it presents in a different way. And in the last, when there is exhaustion, cortisol is finished, then we may have chronic physical illnesses because of the stress only.
थैंक यू, इंटरेस्टिंग। आपने पूरा प्रोसेस शुरू से उसके इफेक्ट्स और एंड तक बताया है। और कोई आप में से ऐड करना चाहता है इसमें? Like I would like, hello. Yeah. I would like to add related to warning signs. Okay. इसके जो वार्निंग साइन होते हैं बेसिकली एक इंडिकेटर है कि हमें अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद अस, तो हमें अपने को चेक करना है और हमें अगर नीड है कंसल्टेंट से मिलने की तो वो सब करना है। और ये जो साइंस है बेसिकली 4 एरियाज में देखे जाते हैं। जैसे फिजिकल में हम देखें तो हमारा बॉडीली बहुत टेंशन होता है, हेडेक होने लगता है, डाइजेस्टिव डिफिकल्टीज आने लगती है, और जैसे हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कई बार हम रेस्टलेस फील करते हैं, होपलेस भी होने लगते हैं। अगर इमोशनल उसमें देखें तो होपलेसनेस, एंजाइटी, पैनिक, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और बिहेवियरली हम देखें तो हमें काफी जैसे रिलैक्स होने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। कई बार हम नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं और जैसे नींद भी नहीं आती है ठीक से, हमें डिफिकल्टी होने लगती है नींद में, एंगर आउटबर्स्ट होने लगते हैं। और कई बार हम सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, जैसे कि कुछ स्लीपिंग पिल्स लेना या कुछ अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम ये कॉग्निटिव लेवल पे देखें तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी पुअर हो जाता है, मेमोरी में प्रॉब्लम होने लगती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पुअर जजमेंट हो जाता है, कॉन्स्टेंटली हम वरी रहते हैं, फियरफुलनेस आ जाती है, इनसिक्योरिटीज आ जाती है बहुत, और हम क्लियरली थिंक भी नहीं कर पाते हैं। तो दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रेस। राइट। प्रोफेसर विकी कुमार जी, मैं आपसे पूछूंगी, मतलब ये अपने जो अभी भारती जी ने काफी वार्निंग साइंस बताई है। स्ट्रेस नॉर्मल, मतलब थोड़ा जो जैसे डॉक्टर आरती ने कहा कि आता है, अच्छा भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। तो जो थोड़ा सा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इसके दो अलग अलग साइंस कैसे हो सकते हैं? मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस में क्या होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और क्या होता है? हाँ, बेसिकली क्या है कि स्ट्रेस जो है, चूंकि आरती मैम ने बताया कि हमारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, लाइक हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स है, कॉर्टिसोल, तो हमारा फिजियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफी हद तक है। नेचुरली क्या है, और हमारा साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है कि हम जो है जो चैलेंजेस है उसको मीट नहीं कर पा रहे, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी है, या कोपिंग जो है हमारी जो कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड है। तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है हमारे सारे लेवल पे पड़ता है, हमारे बायोलॉजिकल, हमारे कॉग्निटिव, हमारे इमोशनल, हमारे बिहेवियरल लेवल पे। तो अगर हम कहें कि इसको हम स्ट्रेस के जब पेशेंट आते हैं तो उनको हम जब असेस करते हैं तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हम यूजुअली उनको करते हैं कि किस लेवल के। तो जो माइल्ड है वो अपनी जो चैलेंजेस हैं डे टू डे लाइफ की उसको मीट कर लेते हैं विद सम प्रॉब्लम। और को थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सॉरी, आपका म्यूट हुआ है माइक। अब डिप्रेशन के उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स होने लगते हैं, उनमें एंग्जाइटी रिलेटेड बहुत थॉट्स, ये प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं। कभी ऐसा देखा गया कि उनमें बहुत एंग्जियस थॉट्स जो है उसके रिपीटेशन ज्यादा होने लगते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं इन चीजों को, वो छोटी छोटी चीजों में डेंजर जो है बहुत ओवरलुक करते हैं अपने सिचुएशन को, बहुत उसमें वो डेंजर जो है वो असेस करते हैं। तो बिहेवियरल लेवल पे जो हम अगर कहें तो उनमें ईटिंग पैटर्न का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी वो ओवर ईट करते हैं, अंडर ईट। तो ये जो जब हाई लेवल स्ट्रेस है तो ये सारे सिम्टम्स जो है उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में उनको जो है बेटर टू
टॉक विथ थेरेपिस्ट, ये जरूरी हो जाती है। तो ये सारे भारती मैम ने कहा कुछ, और ये सारी सिम्टम जो है बहुत एग्रीवेट कर जाती है और उनको अपने डे टू डे लाइफ को मेंटेन करने में, डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम आने लगती है। उनको ऑक्यूपेशन में, अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ वो अपने टाइम को जो है टाइम से वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें जो है उनको डेवलप होने लगती है, और ऐसी परिस्थिति में उनको दे शुड कंसल्ट एनी ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू भारती जी, थैंक यू प्रोफेसर रीति जी। डॉक्टर आजरा है या उनको अगर कुछ ऐड करना है तो? आई थिंक वो नहीं। Yeah, I am Dr. Azra from Varanasi. Oh, sorry, it is not showing. My name is not showing. Well, I'll work later on device because devices was my husband. I'm not using my laptop. I'm so sorry. But I'm Dr. Azra from Varanasi. I'm a clinical psychologist and I'm also teaching psychology. So what I want to say was it was very enriching what Dr. Aarti has said and then Dr. Bharti ma'am has said. Just adding to it, yes, Madhuli ka ma'am, you would like me to emphasize. आप कुछ ऐसी विशेष बातों पे चाहती हैं मैं बोलूं या इसी के कंटिन्यूएशन में बोलूं जो उन्होंने बोला है? अगर आपको वार्निंग साइंस में कुछ ऐड करना हो उसमें कि और क्या हो? जी वार्निंग साइंस में तो डिफरेंस ये है कि जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि एक इवैल्यूएटिव स्ट्रेस होता है, जैसे कि बच्चे एग्जाम दे नॉर्मली और सबके अंदर स्ट्रेस होता है। अभी तो जैसे कुछ तो एक्सटर्नल सिचुएशन जैसे डॉक्टर आरती ने कहा है और कुछ इंटरनल होता है। जनरल सिचुएशन वैसे कोविड है, वेरी नेचुरल टू बी स्ट्रेस्ड। क्या फैमिली से कोई बाहर है, लाइक टुडे माय डॉटर इज अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर पीजी और शी कॉल्ड मी अप उसको फीवर है। अब ये नेचुरल है कि एक मदर को स्ट्रेस होगा, ठीक है, तो साइंस है, बट इट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन माय एक्शन, इट इज गोइंग ऑन इन माय बैक ऑफ द माइंड। आई कॉल माय फैमिली डॉक्टर एंड ऑल दैट, बट आई एम अटेंडिंग दिस जूम मीटिंग, ओके। सो मेरा जो फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट नहीं हुआ, जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग इज नॉट डिसरप्टेड, बट इन द सेम वन साइन इज दैट कि आप कुछ नहीं कर पाते उसके बाद, व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस एंड देन व्हेन द स्ट्रेस ओवरपावर्स यू, जब स्ट्रेस आप पे हावी हो जाता है तो आप कुछ करने लायक नहीं रह जाते। मैं सोचने लगा दिन भर मेरी बेटी को क्या हुआ होगा, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क, हाउ विल आई हेल्प हर, ठीक है। तो अब बीइंग अ मदर एंड वो यहाँ पे आप साइकोलॉजिस्ट हो या कुछ भी हो, बीइंग अ मदर वो डोमिनेट करने लगता है मदर का रोल, एंड यू बिकम एंग्शियस, इट्स वेरी नॉर्मल टू बिकम स्ट्रेसफुल, बट देन वो यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट योर नॉर्मल फंक्शनिंग इज नॉट डिसरप्टेड। ऑल्सो आप स्ट्रेस दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो ना, you have seen that your stress is not transferred। अगर बच्चे को स्ट्रेस हो जाए एग्जामिनेशन का तो he will not be able to write, दूसरे बच्चे जो बैठे they are also under stress, but they are somehow managing it, you know, they are managing that stress। how do I perceive, very important ma'am, क्योंकि perceive कैसे करते हैं, do I take it as a challenge or do I perceive it as a problem? So again takes it over। thank you ma'am। thank you so much। yeah, एक्चुअली जो अभी आपने भी कहा कि ये इंटरनल रहता है, एक्सटर्नल रहते हैं, उसको कैसे परसीव किया जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी अगर हम उसके कॉजेस के तरफ जाए तो इसमें क्या स्ट्रेस के क्या क्या कॉजेस है? मैं गीता जी से पूछना चाहूंगी। Has she joined? Good evening. Yeah, hi. Geeta Gupta, rehabilitation psychologist as well as a school counselor dealing with the school children for many years, more than 10 years, and working with rehabilitation professionals team as a mental health professional as well. मैं causes पे reflect करूँगी, जैसे आपने बोला कि ये तो stress का ये जो time है, pandemic है, ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है जहाँ स्ट्रेस चारों तरफ दिख रहा है। तो कॉजेज स्ट्रेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर आ जाता है किसी चीज को लेके, वन ऑफ द कॉज की कोई भी प्रेशर हो, चाहे वो आगे मैं वो एरियाज को भी रिफ्लेक्ट करूंगी तो उसमें बताऊंगी एक्सेसिव प्रेशर एक पर्सन के माइंड पे जहाँ आ जाए या वो कंसिस्टेंटली वरीड रहे। स्ट्रेस भी होता है, डिस्ट्रेस भी होता है, एक बड़ा कॉज भी हो सकता है स्ट्रेस का और एक छोटी सी सिचुएशन भी स्ट्रेस कॉज कर सकती है।
तो जहाँ पे कंसिस्टेंट वरीज हो या अनसर्टेनिटी दिखे, जहाँ पे कोई कुछ पता ना चले कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, या फिर स्टाइल ऐसी बन जाए मोनोटोनस जहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। अभी इस पैंडेमिक के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली लेडीज हैव सफर्ड विद दिस सिचुएशन कि कुछ भी ना डोमेस्टिक हेल्प ना कुछ, और ऐसा इतना ज्यादा उनकी मोनोटोनस लाइफ हो गई है, रिक्रिएशन बहुत कम, और वो स्ट्रेस का चेंज अचानक आ जाए या ऐसा ट्रांजिशन हो जिसको डील करने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ स्ट्रेस। और सबसे बड़ा रीजन है कि एक कॉज किसी के लिए स्ट्रेस हो सकता है, किसी के लिए वो स्ट्रेस नहीं भी हो सकता है, तो पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी डिफरेंस है। अभी मैम ने रिफ्लेक्ट भी किया कि हम चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, हमारी मेमोरी का कंस्ट्रक्ट कैसे है कि हम उस चीज को स्ट्रेस के तौर पे लेते हैं, या किसी चीज को हम पॉजिटिवली लेते हैं, या बहुत ज्यादा उस पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। मोर ओवर हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या है, दिस ऑल इज ऑल्सो मेजर फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस। और जो कॉमन कॉजेज हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस को कॉज करते हैं, पर्सनल में आ गया कि जब हम ये जैसे पैंडेमिक में कोविड-19 बीमारी ने बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस कॉज किया हुआ, या कोई प्रोलॉन्ग इलनेस है ऐसी जिसमें कि हम हेल्पलेस होपलेस फील करते हैं, या डे टू डे सिचुएशंस में हमारा जो डेली लाइफ का काम होता है, चाहे वो हमें ट्रैवल करना हो, चाहे ऑफिस में पर्सनल एडजस्टमेंट करने हो, या हाउस होल्ड चोर्स हैं, हम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमारा फैमिली एडजस्टमेंट, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसे है, ब्रेकअप है हो जाता है, डिवोर्सेस हो जाते हैं, तो ये भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कॉज होता है। तो दिस ऑल फैमिली कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, या फिर लेवल भी, मनी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे डेप्ट में आ जाते हैं लोग, अभी इस स्टेज में बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत लोग रिसेशन में आ गए, तो डेप्ट हो गया, या उनको लाइफ के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ स्ट्रेस। या फिर सोसाइटी में उनको सोशल अप्रूवल नहीं है, या कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं जिनको नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, रिजेक्शन मिल रहा है, ये भी वन ऑफ द कॉज ऑफ स्ट्रेस है। या फिर हमारा जॉब रिलेटेड, जैसे कि प्रोफेशन कंपटीशन है, या फिर जो नया हम जॉब लेते हैं ऑफिस की सिचुएशन, या जो चैलेंजेस होते हैं वो भी एक स्ट्रेस का कॉज होता है। फिर जॉब लूज कर देना, लंबे टाइम तक कोई जॉब ना होना, या रिटायरमेंट के बाद बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल स्टेट भी होती है, या इलनेस होती है जहाँ पे आदमी होपलेस हेल्पलेस फील करता है, ये सब स्ट्रेस के कॉजेज हैं। तो आई रिफ्लेक्टेड whatever I thought appropriate this time. Thank you so much. Thank you. Thank you. पारुल जी, आप ऐड करना चाहेंगे कुछ किसी एक एरिया में, और अगर स्पेसिफिक अगर कुछ कॉजेस हो तो? I think most of the causes have been discussed by Geeta ma'am, but I would still like to reflect few points, such as one thing which is very important is that any change in person's life can be a major cause of stress. So stress can be physiological, psychological, emotional, social, ये सब stresses हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ
if you are not able to meet the societal demands, societal norms आप meet नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक stress होता है. Parenting अगर ठीक नहीं हो रही है, बच्चा बहुत cranky हो रहा है, बच्चा temper tantrums show कर रहा है, बच्चा out of control जा रहा है, drugs ले रहा है, इस area में भी इंसान को stress हो सकता है. फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जैसे कि मैम ने बताया, तो स्ट्रेस है. मेरा नया मकान बन रहा है, मुझे पैसों की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ठीक सा नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस हो सकता है. सो ये कुछ कॉजेज हैं स्ट्रेस के. मेरी मैरिज हो रही है, मैरिज होने वाली है, ये एक स्ट्रेस है. मेरा बॉस मुझे डांट रहा है, ये एक स्ट्रेस है. सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, स्ट्रेस इन पर्सनल लाइफ, stress due to social stresses are one other type of stress. So stress खुद एक बहुत बड़ा cause है and बहुत चीजों की वजह से भी stress होता है. तो it is interrelated is what I feel. Okay. Yeah. Great. अगर मैं ये कहूँ कि अगर जैसे आपने कहा कि चेंज आता है, जब चेंज होता है तो स्ट्रेस होता है, और जैसे आरती मैम ने भी कहा था कि फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स आ जाता है, तो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन को जब देखते हैं या चेंज को देखते हैं तो ये स्ट्रेस आता है. फिर जो सिम्टम्स जो बताए, जो वार्निंग साइंस बताई है, वो भी होते हैं. उसके कॉजेस साइकोलॉजिकल है. गीता मैम ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये सब बताया कि कहा अलग अलग एरिया में कैसे कैसे स्ट्रेस होता है. तो साइकोलॉजिकल कॉजेस है, पर इसका बॉडी पे इम्पैक्ट कैसे होता है? मतलब बॉडी इसको कैसे रिएक्ट करती है स्ट्रेस को, या उसके क्या असर होता है बॉडी के ऊपर? So if you want me to answer, should I? Yeah. Okay. So generally what we call is as ACTH, adrenal cortisol thyroxine hormone, जब ये रिलीज होता है तो हमारे कुछ हमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं, सच एज स्वेटिंग हो सकती है, हमारे हैंड्स ट्रेम्बलिंग हो सकती है, हमारे हाथ कांपना, हमारा हार्ट रेसिंग हार्ट होना, एंड देन वी बिकम मोर ससेप्टेबल टू कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, है ना, जैसे कि फंबल करना. सो ये कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स हैं जो हमें दिखने को मिलते हैं जब स्ट्रेस हमें इम्पैक्ट करता है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट स्ट्रेस कॉजेस. दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स अस. ज़ैनब जी, आप ऐड करना चाहेंगे बॉडी पे कैसे असर होता है और इसका? या श्योर. सो वेल, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्ट्रेस इज समथिंग लाइक अ हार्मोन, ओके, जो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी को कोई एक एक्शन, ईदर फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स जो करना होता है, तब हमारी बॉडी ये हार्मोन रिलीज करती है, राइट. एंड लाइक बहुत सारे कॉज हमारी बॉडी को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है when we think about it in terms of physical, emotional ways. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो हमारी बॉडी को काफी हार्मफुल रहता है. अदरवाइज स्ट्रेस इज अ हार्मोन व्हिच वी एक्सपीरियंस इन आवर एवरीडे लाइफ. हमें टाइम टू टाइम हमें एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम, फैमिली, कोई भी लाइफ इवेंट्स, किसी चीज में भी एक स्ट्रेस का ट्रिगर होना इज एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म लाइक एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है. काफी बार इसके बेनिफिट्स भी रहते हैं क्योंकि वो हमें कोप करने में हेल्प करता है, राइट. बट जब हम बात करते हैं कि जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, जब हमें ज्यादातर इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, हेडेक ये ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर हमें ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत पड़ती है. तो जैसे कि हम बात करते हैं कि स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, तो वेल इसके काफी एरियाज होते हैं. जैसे मान लीजिए व्हेन वी टॉक अबाउट सांस लेने में या फिर
दिक्कत होना, बिकॉज जब भी स्ट्रेस एज अ हार्मोन रिलीज होता है तो वो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया पे काफी असर देता है, बिकॉज हमारी ब्रीदिंग हमेशा फास्टर हो जाती है ताकि ऑक्सीजन जल्दी से हमारी बॉडी में रिलीज हो, ताकि जबकि इंसान को कभी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है जैसे अस्थमा होता है, ठीक है, तो तब जब इंसान ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उनका अस्थमा को बढ़ जाने में काफी ज्यादा मतलब बढ़ने की काफी शक्यता बढ़ जाती है, राइट। और इवन जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारी धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स को पास करते हैं, इसीलिए हमारी हार्ट बीट ज्यादा फास्ट हो जाती है। इवन जो लोग फ्रीक्वेंट स्ट्रेस लेते हैं या फिर जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो उनको काफी रिस्क होता है हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी बीमारी का। देन व्हेन वी कम टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा लिवर जो है वो ज्यादा ब्लड शुगर प्रोड्यूस करता है, बिकॉज वेन एवर वी आर इन स्ट्रेस हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो लोग ये ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का सर्ज जो हमारी बॉडी में रहता है तो उसके वजह से काफी सारे दूसरी डिजीजेस का भी लाइक डेवलप होने का चांस रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ओके। तो ये सारी बहुत सारे कॉजेज है जब इंसान ज्यादा हद तक स्ट्रेस लेता है सिचुएशंस में। फिर इवन व्हेन वी टॉक अबाउट मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कि ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे मसल्स बहुत ज्यादा टाइटन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कॉमन होता है व्हेन पेशेंट स्टार्ट कंप्लेनिंग दैट उनको काफी बार बॉडी एक्स होता है, हेडेक्स रहता है, या फिर कुछ कुछ जैसे शोल्डर पेन। तो ऐसी चीजों में बहुत कॉमन होता है जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे मस्कुलर पेन ज्यादा हो रहते हैं। इवन स्ट्रेस हमारे सेक्सुअल डिजायर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी काफी अफेक्ट करता है, बिकॉज हम वेन एवर वी टेक मोर स्ट्रेस हम हमारे बॉडी को ज्यादा एग्जॉस्ट करते हैं। तो इसीलिए जब हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस लेते हैं तो इट इज इजी टू बाउंस बैक, बट जब हम ज्यादा हद तक ज्यादा सिचुएशंस में स्ट्रेस लेने लगते हैं तो जैसे मेल्स की हम बात करते हैं तो उनका जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है उनको, और विच लीड्स टू मोर सीवियर डिजीजेस लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर इवन लेस स्पर्म प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें ज्यादा होने लगती है। इवन इट हैज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट, उसमें भी इन्फेक्शन होने की ज्यादा वो रहता है। इवन वुमेन की जब हम बात करते हैं तो ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो काफी बार इरेगुलर होता है, या फिर हमें बहुत ज्यादा पेन होता है व्हेन वी आर अप्रोचिंग आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इवन हमारे जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो काफी बार कम हो जाता है। इवन स्ट्रेस से हमारे इम्यून सिस्टम को काफी फर्क पड़ता है, बिकॉज काफी बार क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है जो उसका हीलिंग कैपेसिटी होता है, या फिर हमारा बॉडी का जो हम जिस तरीके से इन्फेक्शंस को अवॉइड करते हैं तो वो सारी चीजें जो होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें when we talk about these are all the physical aspects of it. When we talk about emotional जैसे तो वो सारा फिर एंजाइटी, फिर कैसे हमारा जो डिप्रेसिव सिम्टम्स होता है, बट ये कब होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। when we talk about chronic stress तो ये सारी चीजें तब होती है जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बट these are like like I don't think many a times people with mental disorders or people suffering with mental illness उनमें ये सारी चीजें ज्यादा अफेक्ट होती है, लाइक बिकॉज उन्हें काफी बार कहाँ पे स्ट्रेस, बिकॉज
वो लोग काफी बार नहीं इतने थॉटफुली डिसीजंस ले पाते, जिसकी वजह से stress is something which we all experience, right? And kahin na kahin it has an effect. These are like the common symptoms which has physical effects. So I think this is what I wanted to add when we talk about the the causes that we face having stress. आपने काफी Yeah. इंटरेस्टिंग सब ये बताया कि उसका कैसे असर, स्ट्रेस का कैसे असर होता है, काफी डेप्थ में काफी एक्सप्लेन किया है। एक जो मैं जैसे आप बता रहे थे मैं रिलेट कर पा रही थी अपने एरिया में से, बेसिकली आई एम अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो अंडर परफॉर्मेंस का स्ट्रेस एक काफी बड़ा रीजन होता है, जैसे आपने कहा, क्योंकि स्ट्रेस बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, तो जब खेलते हैं तो मसल्स टाइट हो जाते हैं और जो फोकस चाहिए होता है खेलने के लिए वो नहीं मिलता। तो कई बार जो गेम खेलने के लिए जो फ्री खेलना जरूरी होता है, तो वो फ्री मूवमेंट नहीं होते उस वजह से, और फिर परफॉर्मेंस कम होता जाता है। परफॉर्मेंस कम होता जाता है, वैसे वापस स्ट्रेस बढ़ता जाता है उनका कि परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है क्या वापस, तो वो साइकिल चलता रहता है फिर। तो ब्रीदिंग, ये सब काफी चीजें स्ट्रेस असर करती है। That is a really good example, ma'am. थैंक यू। इसका स्ट्रेस जैसे आपने अलग अलग ये बताया है, मैं अर्चना मैम से पूछना चाहूंगी कि इसका स्ट्रेस का साइकोलॉजी डिसऑर्डर में कुछ रिलेट होता है क्या, मतलब या कुछ चेंज होता है क्या? अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो कोई डिसऑर्डर होने के उसमें चांसेस होते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है मैम, ये एकदम ठीक है कि अगर स्ट्रेस के लेवल पे और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा। लाइक मैम ने पहले ही बताया था, अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है या वन टाइम स्ट्रेस आता है तो आदमी झेल जाता है, बट अगर वो हम लॉन्ग टर्म रहता है तो कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कॉर्टिसोल है, जो कि हमारे जिसकी वजह से कि कंटिन्यूअस हमारा बॉडी जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट के लिए प्रिपेयर रहता है। और धीरे धीरे होता क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मल होने वाला जो प्रोसेस है उसे करना भूल जाता है, जिसकी वजह से लगातार कॉर्टिसोल का लेवल, एड्रेनल, नॉन एड्रेनल का लेवल काफी हमारी बॉडी में बढ़ा रहता है या डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अगर लॉन्ग टर्म में काफी लॉन्ग टर्म रहता है तो फिर उसमें साइकोसिस डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, एक लेडी मेरे पास आई थी जिसकी कि जो डायग्नोसिस बनी थी वो साइकोसिस बनी थी, सिजोफ्रेनिया बनी थी बेसिकली। उसका पीछे कॉज ये था कि उसकी मैरिज हुई, उसको पता नहीं था, उसके हस्बैंड ने एक और ऑलरेडी मैरिज कर रखी थी। धीरे धीरे पता चला, उसके हस्बैंड ने उसके सास ससुर के साथ उसको छोड़ दिया, सास ससुर को उसके साथ एब्यूजिव, सास ससुर के साथ खराब रिलेशनशिप था या वो बहुत एब्यूजिव थे उस लेडी के लिए। कंटिन्यूअस स्ट्रेस वो 8-10 साल झेलती रही, और अब जब वो हमारे पास आई तब उसकी सिजोफ्रेनिया उसे डेवलप हो गया था, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। सो अगर लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में यदि ये रहता है तो डेफिनेटली इससे बहुत तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो हम फाइट और फ्लाइट की रिएक्शन है ये, तो उसमें ऐसा होता है कि जब एकदम बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है या चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, लाइक मान लीजिए किसी का रेप हो गया या किसी के साथ किसी तरह की इंसल्ट, उसकी बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलेट कर दिया किसी ने, तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से हमारे स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस होता है, हमारे जैसे मैम ने बताया था हमारे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में इससे काफी इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये इस तरह के सिम्टम्स इसमें इससे डेवलप हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। निमृत जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
अब अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, सॉरी। Good evening. I'm Dr. Nimrat Singh. I practice as a therapist in Ahmedabad, and I'm really happy to be here. I think कितना कुछ कवर हो चुका है, बहुत खूबसूरती से कवर हो चुका है, मुझे कुछ भी रिपीट नहीं करना है, लेकिन a couple of things, अब मॉडर्न, अब जो अपडेट हुआ है, हम बोल सकते हैं कि फाइट फ्लाइट तो है ही रिस्पॉन्स, अब फ्रीज भी वी नो है, एक और नया आया है फॉन। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे सपोजिंग हमारे, अगर हम प्राचीन समय में जाएं, सामने इंसान नेचर में रहता था, और अगर साइबर टूथ आ गया तो क्या कर सकता है इंसान? फ्लाइट ही करता है। कोई होगा जो करेजियस या रॉन्गली करेजियस होगा, वो फाइट करेगा। तीसरा होता है हम फ्रीज हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि कोविड हुआ तो फ्रीज हो गए। फोर्थ होता है फॉन। फॉन मतलब हम नीचे लग जाते हैं और हम वो चीज के साथ बोलते हैं ना, वी स्टार्ट एंजॉयिंग दैट। वेरी ऑनेस्टली रेप विक्टिम्स के साथ ये बहुत होता है, जो इंसेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, फैमिली में हो रहा है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, सो दे फील दैट दे जस्ट गिव इन एंड सरेंडर। तो फिजिकली बहुत रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी के, और हाउ इज द पर्सन रिस्पॉन्डिंग? अगर वो फोन रिस्पॉन्स है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। वी नो द अदर रिस्पॉन्सेज क्लियरली। मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी, मतलब एक मॉडल। अगर हम एक विंडो लेते हैं और हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हॉरिजॉन्टली, तो बीच में जो विंडो है ना, हम सब जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज अ टॉलरेंस विंडो। हमारी कितनी टॉलरेंस है अकॉर्डिंग टू आवर जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू आवर लर्निंग, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, इमोशनल रेजिलियंस, एक विंडो है। उसके अगर ऊपर जाता है तो हम उसको हाइपर बोलते हैं, और हाइपर में एंजाइटी इज द मेन थिंग। यू नो, वी गेट वेरी एंशियस, पैल्पिटेशन, हैंड्स फीट गेट कोल्ड, we are nervous and we are vigilant, over vigilant। पर उसके बाद हम नीचे चले जाते, डिप आ जाता है पूरा, and then you feel exhausted। I think it has been already spoken of। और हम फिर कोशिश यही करते हैं in this, that can we deal with it? अगर हम client को help कर दें to open up that tolerance window, it is not so bad। I think हम सब already हम ये कर चुके हैं। जब कोविड शुरू हुआ मार्च में, अब तक हमारी विंडो काफी चेंज हो चुकी है। पहले हम ऊपर गए, हम सब, we all products of that। Then there were times when we went down and felt helpless। जब second lockdown आया, third आया, फिर partial आया, we were like done with it। अब हमारी विंडो बढ़ गई है वापस, because we have bounced back with, so we are doing all these things। तो ये है कि स्ट्रेस का बहुत स्टडीज अभी भी नहीं हुई है that it is related to psychological disorders, but definitely there is a study which says that the brain shrinks, the white matter increases। तो वो सब तो है ही, physically, emotionally उसका असर होता है। और जो rightly बोल दिया है, the two big parts are anxiety and depression, up and down, and everything related to that जिसका असर दिखता है अपनी बॉडी पे। Okay, thank you। फॉर्म मुझे भी पता नहीं था, फोर्थ रिस्पॉन्स, थैंक यू, वो नया ऐड हुआ है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। I'll pass you some literature on that अभी इसके। थैंक यू। Welcome। Yeah। ओके, आई नो स्ट्रेस का काफी हमने देखा है, क्या क्या असर कर रहा है, क्या हो रहा है। इसको कोप अप करने के लिए क्या कर सकते हैं, या स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? तो हिरल मैम, आई थिंक शी इज नॉट अटेंडिंग टुडेज राइट सेशन। Smriti? Yes, hi, my name is Smriti Budhi। I am a psychologist and a palliative counselor। So mostly ज़्यादातर मैं palliative के जो patients होते हैं, जो cancer patients होते हैं, उनके साथ काम करती हूँ। So stress एक काफी ज़्यादा common response होता है। अब जब यहाँ पे avoid करना हो या फिर इसको reduce करना, इसके बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा simple और सबसे ज़्यादा neglected जो एक option है, वो है उसके बारे में बात करना। What is it that is stressing you out?
लोग अक्सर बात नहीं करते, एंड इवन ड्यूरिंग थेरेपी हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, सिर्फ वेंटिंग से ही उन्हें काफी ज्यादा मदद हो जाती है। जस्ट व्हेन दे स्टार्ट वेंटिंग कि ठीक है अभी बात किया, किसी से मैंने बात किया, शेयर किया, वी आर सोशल बीइंग्स, वी आर सोशल एनिमल्स, we need these connections, the reasons why we are doing all this Zoom calls, so that we feel connected to each other. So this is one thing, so talking about it, but it's not always accessible. Like there are certain topics we cannot talk to people about. So in situations like this, like writing therapy, as we say, journal whatever is going through your mind. कभी infidelity के कुछ केसेस होते हैं जिसमें जो चीजें वो शेयर नहीं कर सकते हैं, सो अगर हम उनको लिखते हैं, सो समवेयर वी आल्सो स्टार्ट एनालाइजिंग इट, दैट ओके दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दैट इज व्हाट हैपेंड एंड देन आई रिएक्टेड लाइक दिस। सो जब हम ये करते हैं तो ये एक तरीके की हमारी थॉट प्रोसेस होती है, बट ऑन पेपर, एंड बिकॉज इट इज ऑन पेपर सो ये समझना काफी इजी जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक है एक रूटीन मेंटेन करना, क्योंकि अभी जैसे आपने बात किया है कि पैंडेमिक में हम सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि देयर इज नो रूटीन। पहले पता था उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, अभी नहीं है वैसे। सो ऐसे इसमें एक रूटीन मेंटेन करना, सुबह उठ के नहाना ही है, ऐसा नहीं अभी ऑफिस नहीं जाना है तो घर में ही रहना है तो चलो पजामे है। सो एक रूटीन मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपरली हेल्दी डाइट जो है वो मेंटेन करना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइजिंग इज समथिंग दैट वी ऑफन नेग्लेक्ट, वी ऑल टॉक अबाउट इट, वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, बट वी ऑलवेज एंड अप नेग्लेक्टिंग इट। सो दीज आर द सम थिंग्स दैट वी कैन लाइक use to reduce or avoid if we are taking precautionary measures, but apart from this a lot of things can be solved through talking also. थैंक यू। तो स्ट्रेस के इसको बाहर निकालने के लिए एक वे ढूंढना चाहिए, या तो बात करके या जर्नलिंग से, जो आपने कहा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हम रूटीन का भी काफी अपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है जो काफी मतलब ध्यान में रखना चाहिए, जो हम एथलीट्स को के साथ भी करते हैं। जब वो स्लम्प उनका परफॉर्मेंस में जाते हैं कि कुछ चेंज ही नहीं होता है और उस वजह से काफी स्ट्रेस होता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बंद होना शुरू होता है। तो हम उनको बताते हैं कि चाहे आपको फील ना करे वहां पे जाके प्रैक्टिस करना है तो जाके बैठे रहो, मत करो, पर घर में मत बैठो, बाहर निकलो। तो वो रूटीन मेंटेन करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। There is one more point that I would like to add that I forgot. जो मैंने ये पैंडेमिक के दौरान काफी ज्यादा देखा है, so because people know कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, so हम इसे कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। so ये जो प्रोडक्टिव होने का जो एक क्रेज है, ये भी कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट कर देता है कि ओ 7 महीने हो गए मैं घर पे हूँ, मैंने बुक नहीं लिखी। दिस इज आल्सो समथिंग दैट वी आर स्ट्रेसिंग आवरसेल्फ आउट। सो ऐसे सिचुएशन में एक पॉइंट आ जाता है कि प्रेशराइज आवरसेल्फ एंड देन वी हिट दैट लेवल कि अभी इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो। So the best thing we can do is stop stressing ourselves about it, take a few steps back, reflect, do the things we enjoy. क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जो चीज हमें प्लेजर देती है, जो चीजें हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, उसकी तरफ हम भागते हैं। Right. So this is also something that I thought that should be included. Right. Yeah, that's very interesting point actually. मतलब पहले बाहर भागते थे, अभी ऑनलाइन भागते हैं, तो the race continues. एक पॉइंट जो इसमें अभी जो आपने टच किया था उसमें कि हम कहते हैं कि आपके कंट्रोल में कौन सी चीजें हैं उसको समझिए और कंट्रोल के बाहर कौन सी चीजें उसको समझिए। तो जैसे समझ में आता है कि देयर आर थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड माय कंट्रोल, यू नो हाउ मच आई ट्राई आई कैन नॉट कंट्रोल दैट। तो एक बार वो एक्सेप्टेंस आ जाए तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि चेंज करने के लिए, सामने वाले को चेंज करने के लिए मैं पुश करती रहूं तो मेरा कि होता ही नहीं, स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर एक बार मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मेरे कंट्रोल पे नहीं है, तो मेरे कंट्रोल में जो चीजें हैं अगर मैं उसके ऊपर फोकस करूं तो फिर मेरे ख्याल से वो भी एक चीज है जो हेल्प करती है। किसी को कुछ ऐड करना है? मैं इसमें 4 A's जोड़ना चाहती हूँ कि वी कैन जस्ट अवॉइड द सिचुएशन, मुझे लगे जो ट्रिगर कर रहा है या जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, सो वी कैन जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन। वी कैन ऑल्टर द सिचुएशन। अगर घर में ही मुझे किसी से प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपने में ऐसे चेंजेस लाएं ताकि हम जो है अपने को कोपिंग स्ट्रेटजी, जो हेल्दी कोपिंग है, उसको इंक्रीज कर सके।
दूसरा है वी कैन अडेप्ट टू द सिचुएशन. ये ज्यादा अच्छा है कि ट्राई चेंजिंग योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, रिफ्रेम प्रॉब्लम्स and focus on the positive things of the happening, what the situation in that situation it is happening. And next is to accept the situation. So in that way we can cope very well our stresses. दूसरा चीज है कि स्ट्रेस में क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है. तो हमें रिलैक्सेशन भी सीखना चाहिए. उससे क्या होता है कि हम जब रिलैक्स्ड होते हैं तो हमें एक इनपुट मिलती है कि वी कैन जस्ट हैंडल द सिचुएशन. हम जितना रिलैक्स होंगे तो हमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. यूजुअली मैं देखती हूँ हमारे पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनको एक पैकेज के तौर पे देते हैं कि अगर कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हर इंडिविजुअल है, उसकी कैपेसिटी अलग है, उसकी कोपिंग अलग है, उसकी पोटेंशियल अलग है. तो हम उनके अनुसार हम एक थेरेप्यूटिक पैकेज बनाते हैं और उसमें रिलैक्सेशन को हम लोग जरूर इंक्लूड करते हैं. तो रिलैक्सेशन जैसे JPMR कर लें या बहुत योगा टेक्निक्स है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हम जब अपने को इंटरनली बैलेंस कर लेते हैं हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक होता है हम स्ट्रेस को डील करने के लिए. तो ये हम एक चीज सजेस्ट करते हैं हम क्लाइंट को. Yeah, relaxation technique काफी important. Yes, yes. I'd like to add one more thing. Yes, sure. There is a concept called inner child healing. ये बहुत अच्छी होगी हम साइकोलॉजिस्ट के लिए भी. जैसे रीपेरेंटिंग एक टेक्निक है ना, कि अगर जो हमारे साथ हुआ है, जब स्ट्रेस कोई चीज का आता है तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है. पास्ट के सब ट्रॉमास भी अलाइव हो जाते हैं ना. वी ऑल हैव गॉन थ्रू. So there is this concept where you look at yourself in the mirror. I do it with my clients, I do it with myself. That you talk to your inner child, love that child, nurture it. Jo bhi yaad aa raha hai, do not say that no, I cannot think like this, I'm a psychologist. First, we are human beings and we need to really take care of ourselves. कई बार mental health हमें लगता है हमारे बाहर है, actually हमारे अंदर भी है mental health. So I think this practice of very conscious mindfulness, stabilizing ourselves even before we take our sessions, मैं तो करती हूँ ये. Before I go into a session, I stabilize myself, I do my breathing, and then go into the session, because we tend to pick up a lot. बाहर से भी हमारे अंदर आता है और हमारा भी counter transferences होता ही है ना हमारे clients के ऊपर. So I think और ज़्यादा at least इस कोविड के बाद आई बिकम मोर कॉन्शियस दैट जितना हो सके खाता कम कर दो, पीछे का अपना ही खाता पहले पीछे का कम करो, फिर आगे जाना बहुत इजी. इट्स लाइक इफ आई एम कैरिंग टू मच ऑफ लोड एंड वॉकिंग, आई वोंट बी एबल टू वॉक वेरी फास्ट. अगर मैं उसको ऑफलोड कर दूंगी तो आई थिंक जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अगर हम अपने लिए पहले कर ले तो नथिंग लाइक इट. So true. Absolutely true. खुद को भी एज अ साइकोलॉजिस्ट भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को पहले देखने की, क्योंकि जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं उसके पहले खुद को हेल्प करना जरूरी होता है. जैसे वो फ्लाइट में भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि दूसरों को ऑक्सीजन मास्क पहनाने के पहले खुद को पहन लीजिए. तो जब तक हम स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे तब तक दूसरे को हेल्प करना भी डिफिकल्ट होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. काफी अच्छे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और कोप अप करने के लिए पॉइंट्स आए हैं. मैं डॉक्टर आरती के पास वापस जाना चाहूंगी कि एज अ साइकियाट्रिस्ट आपका रोल इसमें क्या आता है, कहाँ आता है और क्या आता है? Yeah, if all of the stress management techniques are not working, suppose all the non-medicinal techniques are not working, counseling is not working, relaxation exercises it's not working. Definitely, first thing is non-medicinal interventions. Then I would like to investigate my patients. I would like to investigate their salivary cortisol, and I would like to stabilize this cortisol, because the salivary cortisol is the intracellular cortisol. Though the blood cortisol also gives us the idea.
where is the cortisol right now? Because we know the circadian rhythm is there, and in this circadian rhythm, we know the maximum values are at 8 a.m. But blood cortisol levels, it gives us the rough values only, and the salivary is the best. But the best investigation for doctors, it is the question, how do you feel? So if the patient is not feeling well, definitely cortisol axis is not working well. But if we know the causes, we have solutions. So I investigate my patients, I see the salivary cortisol, or if they are not able to, go for the expenditures for the salivary cortisol, I take rough idea for the blood cortisol and assess whether the patient is in the alarm reaction or in the exhaustion phase. If he is in the exhaustion phase, it means the cortisol is low. If he is in the alarm reaction, the cortisol is high. So one is settling the cortisol. Two, in the stress period, our B vitamins gets finished. I would like to supplement with the B vitamins. I would like to give the magnesium supplements, because cortisol, whenever it is dysregulatory, what it does is it increases glutamate, excitotoxic effects, anxiety. Fine. So I would like to give magnesium here. Fine. And now let's understand the normal physiology. The glutamate, it is converted to GABA. Glutamate is the excitotoxic neurotransmitter. It is converted to GABA, most calming neurotransmitter. So here glutamate is high. To convert to GABA, it needs B6. I supplement with vitamin B6. And from the glutamate, normal physiology, let's talk about normal things. From the glutamate, there is a amino acid formation, glutathione. For this conversion, we need N-acetylcysteine. It's an amino acid. They'll supplement these patients with B vitamins, magnesium, amino acid, and settle the cortisol. That's it. And we know that cortisol is, we know this normal cortisol levels. We know it has anti-inflammatory action. We know the inflammation will increase if cortisol is dysregulatory. We know the immune system is impaired. We know that gut microbiome would be bad. We know that digestion would be bad. So the key is settling cortisol. So I would like to settle cortisol. Okay. Thank you. Wow. What a learning experience. पूरा 1 घंटे के इसमें अलग-अलग सब views, अलग-अलग सब learning experience. I see Hill ma'am is joined. Ma'am, आपको कुछ add करना है किसी point के लिए? Hello. Good evening. Since I had back-to-back patients, I just couldn't join in time. I was a little bit late. Apologies for that. I was actually from 2 o'clock back-to-back sessions were there. But then I had promised Bhumika that I would be there for a short time. So like last, when I joined, there was a lot of discussion about how do you cope basically. So I would just add one thing that even our personality also makes a difference. If we are kind of a type A personality where we do a lot of things at a time, we also need to work on those things. अगर हम उस पे भी work करेंगे या फिर हमारे time management पे भी work करेंगे तो सारा स्ट्रेस जो फैक्टर है उसको हम कहीं ना कहीं तो कंट्रोल कर पाएंगे. एंड जैसे मैम ने कहा, डॉक्टर आरती मैम ने जैसे कहा कि नथिंग इज वर्किंग नहीं हो रहा है तो फिर उनको मेडिकेशन से कैसे मैनेज करना है एंड वो विटामिन कैसे प्रोवाइड करना है. बट अगर कोप हो रहा है तो इवन टाइम मैनेजमेंट फैक्टर एंड द पर्सनालिटी फैक्टर ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर ज्यादातर ए टाइप के पर्सनालिटी वाले लोग रहते हैं जो बहुत सारी चीजें लेके बैठते हैं एक साथ, उन्हें कर lot of anxiety issues will also come, definitely lot of stress factor will also come. So under that case थोड़ा time management उन्हें बता दे, थोड़ा psycho educate कर दे about managing the things at their own space. That will also make lot of wonders in their stress level. Great. Thank you so much. Time management, I know it's a very important point also. And talking about time management, our time is also up.
So just before we wind Because up, most of my clients wise, when I see a lot of clients coming up, मुझे ये भी करना है और मुझे 24 घंटे कम पड़ रहे हैं. Like I always say that कैसे 24 घंटे कम पड़ रहे हैं? हर एक की जिंदगी 24 घंटे ही होते हैं. So there, there is something called as lot of time management has to be taught to the client, and that's very, very important in fact. Yeah, very true. And the most important thing is, if you have 30 minutes, मैं कुछ भी नहीं कर रही. It's really important for the cortisol. Yes, sure. That is very much important. It's my free time. It settles cortisol. Yes, that is sure. That is very much sure that our time is very, very essential. Unless and until we give ourselves some time and we keep on having lot of things, we also tend to relax, and that really is very important for decreasing the stress. And definitely taking a lot of small vacations, workouts, all this is very important for us. That is, we time is a must. We need to pamper ourselves. Maybe a small, even going to a parlor will also work for us, or even a piece of chocolate for us ourselves, that will also work. A piece of chocolate is, I think they have magnesium deficiency. It's all because of that we take chocolate and it settles that. Or the hypoglycemia because of the cortisol. Okay. It's all neurobiological. Right. Very true. Yeah, so all in all, we need to give time to ourselves. We need to plan our schedule so that we are on our activities properly. और कभी-कभी बीच में chocolate भी खाना चाहिए. Yes, so thank you so much. इस 1 घंटे में हमने काफी चीजें कवर की है, and I'm sure like stress काफी बड़ा टॉपिक है, उसको 1 घंटे में और इतना अच्छे से पूरे डेप्थ में कवर करना डिफिकल्ट है, पर it was amazing talking to you all and learning. Thank you so much. Yeah, thank you. Madhuli, you were an excellent host. Thank you, Madhuli ji. It was a very enriching session. Thank you. Thank you, Aarti di and Nimrat di and all of you. Thank you so very much. It was a really nice interaction. Yeah, actually, I mean, like, yeah, it was like as if we are having a chat on coffee. We can switch off.